Very good morning, students. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of English of US Academy Institute, Gorakhpur. My dear student, today we are here to start the second poem that is prescribed in your syllabus of class 9th, that is Wind. Already I have told you that in Beehive we will find prose and poetry both. First poem already we have read, that was The Road Not Taken. Today we are here to start the second poem, Wind. Wind, that is composed by an Indian writer, Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, who was a Tamil writer, poet, journalist, a social reformer, who was born on 11 December 1882 in Madras. But this poem, Wind, actually was originally in Tamil. Later on, this poem was translated into English by A.K. Ramanujan. You can see in the end of the poem that is written by Subramanya Bharati, but originally this poem was in Tamil language because the writer Subramanya Bharati was a Tamil writer. So he had composed the poem in a Tamil language, but later on it was translated in English from Tamil by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan, who was a Kannada poet and English poet and well known for his translation of his classical and modern poetry. So you must know that this poem is composed by Subramanya Bharati and was translated into English by A.K. Ramanujan. So let's start the poem. So this present poem is about wind. We know very well, my dear student, wind is very powerful and whenever it blows, it always brings destruction. And somewhere, although we feel very happy to find wind, but sometimes it brings a lot of destruction. In this poem, the poet Subramanya Bharati is talking to wind. From the very first line, it is talking about wind. You can see in the poem from the very first line, wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the paper. Don't throw down the books on shelf. In this poem, the poet is talking to wind and speaking to wind that come softly means you must blow very softly. You should not destroy the other things. Here, my friend, my dear student, you must know wind who is very powerful, but actually poet has given in the poem a symbolical meaning also. Wind actually is the symbol of hardship and obstacles which we always face in our lives. Hardship and obstacles means problems and the obstacles, obstruction whatever we face in our life. जब भी लाइफ में हम अपने प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स बाधा रुकावट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो विंड एक्चुअली इज अ सिंबल ऑफ द सेम. So poet from the very first line is talking to the wind. Wind, come softly. Do not break the shutters of the window. Poet is talking to the window. Come softly. Blow softly. धीरे धीरे बहो. Don't break the shutters of the windows. Windows की जो shutters होते हैं, doors होते हैं, उनको break मत करो. क्योंकि देखे होंगे माय फ्रेंड कि जब कंटिन्यूस विंड जब बहुत तेज चलता है तो डोर आपस में लड़ते हैं, विंडोज़ के डोर आपस में लड़ते हैं और अक्सर वो टूट जाते हैं. तो द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड दैट कम सॉफ्टली, ब्लो सॉफ्टली, धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ, उससे पेपर चारों तरफ बिखर जाएंगे. डोंट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और सेल्फ में जो बुक रखी है उसको नीचे मत गिराओ क्योंकि बहुत तेज हवा चलती है पर सारे सामान इधर उधर बिखरने लगते हैं. So poet is requesting to the wind, poet is appealing to the wind, don't come, don't blow so fast, come softly, blow softly, धीरे धीरे बहो जिससे कि सेल्फ में जो बुक्स रखे हैं वो नीचे ना गिरें. There, look what you did, you threw them all down. And poet is again telling to the wind कि you see what you have done, you have thrown them all down. तुमने सारे बुक को सेल्फ से गिरा दिया है.
पोएट इज टॉकिंग टू द विंड कि तुम इतनी तेज हवा चल रहे हो कि शेल्फ में जितनी बुक्स रखी हैं वो सब नीचे गिर गई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तुम ला देते हो। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और तुम्हारे हवा से किताब की सारी पेजेस जो हैं वो फट गई हैं। यू ब्रॉड रेन अगेन एंड अगेन यू हैड ब्रॉड रेन, और हवा चलने से जोर से फिर से बारिश हो जा रही है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन माय डियर स्टूडेंट, पोकिंग फन मीन टू मेक फन, मजाक बनाना, दूसरे का मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर लोग, पुअर पीपल, वीक पीपल आर देयर, यू आर मेकिंग फन ऑफ देम। तुम गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का तुम मजाक उड़ाते हो। पोएट इज टॉकिंग, पोएट इज टेलिंग टू विंड कि यू आर मेकिंग फन ऑफ द वीकलिंग्स, यू आर मेकिंग फन ऑफ द पुअर पीपल। गरीब लोगों के जो घर होते हैं, जो अक्सर जो कमज़ोर होते हैं, जो बहुत तेज़ आंधी आती है तो उनके घर उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो पोएट विंड से कह रहा है यहाँ पर कि तुम गरीब लोगों का, पुअर लोगों का, वीक लोगों का मजाक उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कह रहा है पोएट? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू ऑलवेज मेक फन ऑफ पुअर पीपल, वीक पीपल। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बल मीन टूटे फूटे जो होते हैं, उनके बहुत कमज़ोर जो हाउसेज, दैट इज क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। जो तब तुम हवा चलाते हो इतना तेज चलते जब, तो जो गरीब लोगों का, पुअर पीपल का, जो वीक लोग हैं उनका तुम मजाक उड़ाते हो, उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हो। एंड यू ऑलवेज ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ओनली। दैट्स वाई पोएट इज अपीलिंग, पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू द विंड, ब्लो सॉफ्टली, धीरे धीरे बहुत, जब तुम तेज चलते हो यू ऑलवेज ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ओनली। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और विंड के जो गॉड हैं, जो गॉड, जो हवा के जो देवता हैं, वो क्या करते हैं, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ला देते हैं, तबाही ला देते हैं, सब तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, एंड पोएट कह रहे हैं कि वो हवा जो है वो कभी वो नहीं करेगा जो तुम चाहोगे। सो कम लेट्स build strong homes. My dear student, once again you must remember here, the wind is actually the symbol of hardship and obstacle which always comes in our life. हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्ट्रक्शन जो फेस करते हैं, एक्चुअली विंड इज़ द सिंबल ऑफ द सेम। जिस तरह हम लोग प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हम लोग गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। वैसे ही पोएट भी यहाँ कह रहे हैं कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइंस द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीट फास्ट। और पोएट कह रहे हैं कि इसलिए हमें बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम बनाने चाहिए, डोर्स को फॉर्मली ज्वाइंट करना चाहिए, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी को फॉर्म करना चाहिए, एंड मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और हार्ट को अपने स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाना चाहिए। फॉरवर्ड टू फेस आवर प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमें डिटरमाइंड होना चाहिए, और हमें पूरी तरह से फॉर्म हार्ट का फॉर्म बॉडी होनी चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये विंड जो होगी हमारी फ्रेंड हो जाएगी। मतलब जैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उसको डिटरमाइंड होकर के उससे मुकाबला करेंगे, उससे लड़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और हमारी फ्रेंड हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक फायर जो हल्की जो फायर्स होते हैं, आग होती है, उसको विंड क्या करता है, ब्लो आउट मीन्स बुझा देता है। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लोरिश, और जब ज़्यादा आग होता है उसको क्या कर देता है, और ज़्यादा रोर कर देता है, फ्लोरिश कर देता है, बढ़ा देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, लाइक वी प्रेज मीन हम लोग विंड का जो गॉड होते हैं हम लोग उसको प्रेज करते हैं, पूजा करते हैं, डेली उनको प्रेज करते हैं। सो ही इज आवर फ्रेंड, कंसीडर हिम एज अ फ्रेंड। So poet overall mean to say the wind who is very powerful and always brings destruction, we should make friends of him, हम लोग उसे उसका अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें और कोई डिस्ट्रक्शन न मिल सके। बिकॉज विंड ऑलरेडी पोएट हैज़ टोल्ड इट इज़ द सिम्बॉलिकल मीनिंग, पोएट इज सेइंग हियर दैट विंड इज द सिंबल ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन विच वी ऑलवेज फेस इन आवर लाइफ। So we should always stand firmly in front of our problems and obstructions, and we should always face it. हमें अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करके उससे मुकाबला करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। इस और अगर हम ऐसा करते हैं
तो विंड हमारा बिल्कुल फ्रेंड हो जाएगा, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो my dear student, I hope you have got the substance of the poem, you have got the chapter very well, although this is very small poem, wind, but you have got the substance of the chapter. In the end of the chapter you can see here few important glossaries are given there: poking fun, rapturous, vinod. Okay, you have to write these word meanings, whatever I will provide you in the end of the video, you have to write in your answers book. And questions are there, you have to write the answer of these questions on the basis of the reading of your poem. You have to write the answer of these questions. Beside this, you have to write a short summary of the poem in your answer book. So my dear student, we will meet again in the next video. Thank you.